New Year's, it's Rishams. Today is 8th of August 2020. अहले वतन आपने ईद उल अज़हा बहुत जोशो जज्बे से मनाई. That's the spirit of our nation. दुआ है उस रब काबा से, जो इस कायनात का मालिक है, कि या अल्लाह जो ईदें अब आए उसके अंदर हम इस हालत जंग से बाहर आ चुके हों और कोरोना को बीट कर चुके हों. Viewers, today I would invite one of the renowned Dr. Rabia, which is from Capital Hospital Islamabad on the audio link. We're going to talk about the corona again. Good evening, Dr. Rabia. Good evening, thank you. Dr. Rabia, thanks for coming on my show. सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि ईद उल अज़हा मनाई गई और before the Eid, before the week started before the Eid, the government said that the cases getting decreased. Actually, after the Eid, this is the what you can say on Saturday. This is my second program. The reason I invited you to tell me the exact figure and the happening that it is actually decreasing or the cases increased during the Eid festival. Yes, actually, I want to tell you that cases were getting decreased before Eid, no doubt. Okay. There were a lot of factors which were contributing this reason. Right. Due to smart lockdown and the aggressive management at the government level and the local authorities, the cases were decreasing. As you know, the government was trying to tell the population to adapt the SOPs, and government closed the educational institutes, schools, restaurants, wedding halls, common public refreshment places, and especially the smart lockdown, which played an important role in the control of this pandemic situation. It was very beneficial, and it balanced the economic condition of our country. People were going to perform their duties, and they were earning till some extent, and they were maintaining the social isolation. Dr. Rabia, मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है कि ईद उल अज़हा से पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो फिगर्स बताई गई अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बतदरीज कम हो रही थी और जो हमारा हमसाया मुल्क है उसमें अमवात 10 गुना ज्यादा हो चुकी है, मे बी 9 गुना ज्यादा हो चुकी हुई है. इंडिया में अभी फिगर नियरली 42 to 44,000 हो चुकी है और पाकिस्तान में अभी भी 5,500-6,000 तक है. ईद से पहले हुकूमत के बहुत अच्छे इकदाम थे, स्मार्ट लॉकडाउन थे और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस स्ट्रेटजी को सराहा गया है, स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे ईद गुजरी है तो कल के जो केसेस थे मेरा ख्याल है उसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ. Yeah, I was coming to this point. Okay. Actually, after Eid ul Azha till today, total number of cases are it's about 2,83,487 cases present till today. सही है. In which deaths were 6,068 and recovered cases were 2,59,604. सही. Number of cases. सही. But after Eid ul Azha, I don't know. It's a routine surge or it's the beginning. It's the beginning of the second virus wave formation. I mean, आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी हम सेकंड फेज से गुजर रहे हैं या सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है? Yes. No, we will decide after Muharram. That it's a routine surge which is increasing the cases, or it's the beginning of the second wave. Because you know, on 2nd August the cases reported were 331. सही. On 3rd August 432. सही. 5th August 727. Like every day 100 to 150 cases were increasing. And viewers, cases were 840. जी viewers, when the pandemic started, जब ये pandemic ख़वातीन स्टार्ट हुआ था तो फरवरी में जो मीटिंग्स हुई और जो मार्च में मीटिंग्स हुई उसमें जो स्टैट्स निकला था जून के अंदर उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में अगस्त तक 50,000 अल्लाह माफी दे कि इतनी मौत हो चुकी होगी, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 5,500-6,000 है. तो दैट मीन्स कि बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हुए, मेडिसिन जो डॉक्टर्स समझ सकते थे उसका इलाज मरीजों के ऊपर जो हुआ उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज कम होना शुरू हो गई हैं. डॉक्टर आबे, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कल जो केसेस इंक्रीज हुए हैं
अगर आप उसकी तादाद बता सकें तो जरा बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उसमें after Eid cases are increasing day by day. I want to tell you after the 2nd August onwards, like the second day of Eid. अच्छा On second day the cases were 331. अच्छा ठीक Yes, and on 3rd August the cases reported were 432 number of cases were present. अच्छा On 4th August 675 cases. Like you can analyze that 100 to 150 cases are new cases are reporting every day. सो इसका मतलब कहने का मतलब है कि इसका मतलब कहने का है कि ईद से लेके अब तक 500 केस रिपोर्ट नए हो चुके हैं। No. Till now 842 cases. अच्छा व्यूअर्स, अभी तक ईद के बाद 842 केसेस अगेन रिपोर्टेड, लेकिन दुआ ये है कि वो चीजें इतनी खराब ना हो, उसको रिकवर जल्दी हो जाए। जी आगे चलें। Yes, I want to tell you one thing more, that during Eid days, government has performed 5,424 COVID tests. अच्छा तो इसका मतलब है हमारी टेस्टिंग किट की जो करने की सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हो चुकी हुई है। Yes, obviously. Because people are more aware, they are going to laboratories and they are, they are more aware of their health. The government is performing their test techniques very well. अच्छा डॉक्टर राबिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी आ रहा था और मेरे व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 3 महीने से लेके इस कोविड के प्रोग्राम को लेके मैं चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इसमें रही, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर फरहान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज डॉक्टर फरहान ने भी मेरे साथ आना था, लेकिन उनकी कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से वो लोग नहीं आ सके, क्योंकि ईद के दिनों में उन्होंने ड्यूटीज दी हैं, सो उनकी एक कमिटमेंट थी। तो मैं जो क्वेश्चन मुझे व्यूअर्स ने पूछा हुआ है, जिसको वजह से जो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। सो व्यूअर्स, आप लोगों का क्वेश्चन मैं भी डॉक्टर राबिया से जानने लगा हूं। वेंटिलेटर्स आर द लास्ट रिसोर्ट बट सम पेशेंट्स गेट रिकवर्ड फ्रॉम वेंटिलेटर्स। डॉक्टर राबिया, अक्सर ये कहा जाता है कि जी वेंटिलेटर्स जो है वो आपका जो ऑर्गन चल नहीं रहा होता उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर से यानी कि आम और नास में ये चीज बनाई जाती है कि जी अगर वेंटिलेटर बंदा चला गया तो उसे वापस नहीं बचना, ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर से वापस भी आ जाते हैं। डॉक्टर्स जब आईसीयू में आपसे कंसेंट पूछते हैं कि जी हम अब आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेके जा रहे हैं, वहां पर अटेंडेंट जो है, जो बेसिकली एक क्वेश्चन मुझे किसी अटेंडेंट ने किया था जिनके पेशेंट वेंटिलेटर से वापस आ गए थे, तो उन्होंने कहा जी आप लाजमी पूछना है। उस वक्त अटेंडेंट की क्या हालत होती है कि जब आपसे पूछते हैं हाँ जी आप फॉर्म साइन कर दें कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त आप मुझे बताएं कि वो कंडीशन कैसी है और वो फैसला कितना मुश्किल और कठिन होता। जी यस, एक्चुअली मैं अभी उर्दू में आपको बताती हूँ। जी प्लीज, जी बहुत शुक्रिया आपका, जी बताएं। जी एक्चुअली ये अगर आप कोविड के लिहाज से अगर हम क्वेश्चन करते हैं वेंटिलेटर्स इक्विपमेंट की, तो उसमें इसकी 4 फॉर्म्स हैं कोविड इन्फेक्शन। ठीक। एक तो है जब बहुत ही जो कम फॉर्म है जिसको माइल्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक, उसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो बूढ़ा हो वो यंग हो, उसको पेशेंट को फीवर होता है, फ्लू होता है, खांसी, नजला, जुकाम, जोड़ों में दर्द, इस तरह के अलामात हैं, उनकी ऑक्सीजन जो है वो भी मेंटेन रहती है, उसको किसी मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी फॉर्म आ गई जो कि थोड़ी कम हसास है, थोड़ी ज्यादा ठीक हो गया, ऐसी फॉर्म है जिसमें पेशेंट को अलामात आ रही हैं, ठीक हो गया, उसको कहते हैं जी इंग्लिश में मॉडरेट फॉर्म। उसमें ये होता है कि फीवर है, पेशेंट को बुखार है, फ्लू है, उसको खांसी, नजला, जुकाम हो रहा है, प्लस उसका जब आप टेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी फाइंडिंग आती है। अच्छा एक्सरे या सीटी स्कैन? या नो इट्स चेस्ट एक्सरे। अच्छा ठीक है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्चुअली हम पैटर्न लेडर टू लेडर जाते हैं ना, पहले हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं, अगर हमें उसमें चीज नहीं पता लग रही फिर हम सिटी स्कैन की तरफ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर उसमें पता नहीं लग रही फिर हम हाई रेजोनेंट सिटी स्कैन की तरफ जाते हैं। ठीक होगा। अच्छा ये जो चीज आप मुझे बता रही है इस पे हम दोबारा भी आपसे पूछूंगा। अच्छा प्लीज आगे करिए, करें। हाँ जी प्लीज। अब ये हम मॉडरेट फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को क्या सांस नहीं उखड़ा, उसको बस हल्का फुल्का जो है वो नजला जुकाम है, प्लस उसके चेस्ट एक्सरे पे हम देख लेते हैं कि हमें कुछ इस तरह के अपनी मेडिकली टर्म्स में कुछ इस तरह की फीचर्स लग रही हैं कि हमें लग रहा है कि कहीं इसको कोविड ना हो। अब ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, वेंटिलेटर की जरूरत उसको बिल्कुल नहीं पड़ती, ठीक हो गया, बूढ़े लोग हों या वो जवान हो। ठीक हो गया। अब आ गई तीसरी फॉर्म जो है सीवियर फॉर्म,
अच्छा उसमें पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेने की सलाहियत है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करने की सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाती है, डैमेज हो जाती है। नॉर्मली जो पेशेंट है वो 99% टू 100% जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है नॉर्मली ठीक है। इंसान के जिस्म में, अच्छा इन पेशेंट्स की 94 से भी कम हो जाती है। डॉक्टर राबे प्लीज इस चीज को दोबारा रिपीट कीजिए, ये जो लेवल का आपने ऑक्सीजन लेवल बताया दोबारा रिपीट कीजिए इसको जी। बेसिकली ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारी एक होती है, हमारे जिस्म के अंदर एक सलाहियत होती है, ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करते हैं, लेके जाते हैं जिस्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल और एक्सहेल, ठीक जी, हाँ जी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जी, प्रोसेस। ठीक। ये जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसकी ये 99 टू 100% होती है। ठीक। जब हम उसकी उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटी सी डिवाइस है, जब हम लगाते हैं ठीक। तो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। सही। अब जो पेशेंट जिनको कोविड हुआ हुआ है और जो हमारे पास आए हैं सीवियर फॉर्म के साथ, जिनका सांस उखड़ा है या जिनको सांस ठीक से नहीं आ रहा, उनको हम जब पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो उनकी ये जो सैचुरेशन है रेट, ये हमें लेस देन 94% मिलता है। अच्छा ठीक। उसके बाद हम उनका चेस्ट एक्सरे कराते हैं। अच्छा मुझे, अच्छा अब स्ट्रेट, अच्छा डॉक्टर स्ट्रेट द पॉइंट आता है, 94% जिनका काम होना शुरू हुआ, और कौन सा क्रिटिकल लेवल है कि जिससे बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि अब इसकी वेंटिलेटर के अलावा इसके कोई चारा नहीं, कौन सा लेवल जिससे आप नीचे आते हैं? अब देखिए वो तो आपका समटाइम्स अगर पेशेंट को मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर है, उसके बाकी के जो अज़ा है वो भी काम करना छोड़ दें, वो पेशेंट को इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो चुका है, ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन की बात हो रही है, सही है, ये कोविड की बात हो रही है। अब कोविड पेशेंट को बहुत ज्यादा हुआ है, उसकी सैचुरेशन हो सकता है कि ड्रॉप बहुत ज्यादा ना हुई हो, मगर उसके दूसरे अज़ा काम नहीं कर रहे, तो हमें उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अब उस टाइम डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट की पूरी फिजिकल सिचुएशन देखने के बाद, और अगर आपका 85 से कम हो रहा है तो फिर आपको वेंटिलेटर पे डालते हैं। और ये जो मैं आपको 94 से कम बता रही हूँ, समटाइम्स पेशेंट जो बूढ़े होते हैं वो कोप अप नहीं कर पाते ऑक्सीजन को सही, तो हमें इन पेशेंट्स को भी वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। ठीक। अगर पेशेंट यंग होगा तो फिर 94 से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी उसकी। और आपके मुशाहिदे में कितने पेशेंट आपने देखे हैं जो वेंटिलेटर से रिकवर करके वापस वार्ड में आ गए और सेहतयाब होगा? देखिए अगर पेशेंट, वही बात आ जाती है जिसको कोमॉर्बिड एक क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब एक टर्म यूज होती है ना कोमॉर्बिड, लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मैडम मैं आपके मुशाहिदे की बात करूं कि आपने कोई ऐसे पेशेंट देखे? एग्जैक्टली जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि अगर 80 पर प्लस एज है किसी पेशेंट की, ऑलरेडी वो वीक है, वो एस्थमेटिक है, मैंने देखे हैं पेशेंट जो कि एस्थमेटिक हैं, जिनको पहले सीओपीडी एक लंग्स की बीमारी है, जिनको एस्थमा चल रहा है, एलर्जी चल रही है, और उनको कोविड भी हो गया है और वो बूढ़े भी हैं। सही है। उन पेशेंट्स का नहीं कहा जा सकता कि वो वेंटिलेटर से रिवाइव कर जाएंगे, मगर अगर यंग पेशेंट्स हैं और उनको कोविड हो गया और वो इवन क्रिटिकल फेज में चले गए हैं तो वो पेशेंट्स बहुत अच्छा रिवाइव कर जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। वो अपनी लाइफ को बेटर सर्वाइव करते हैं। ठीक। और जो पेशेंट अबव 60 है, व्हाट आर द चांसेस इफ दे कैन गो ऑन वेंटिलेटर? उनका कितने % चांस है जो पेशेंट 60 से अबव है, अगर वो वेंटिलेटर पे जाते हैं और वापस आते हैं कि नहीं आते हैं? 50-50 है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कि उनके चेस्ट एक्सरे की या सिटी स्कैन की फाइंडिंग कितनी ज्यादा है, कैपेसिटीज उनकी कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कोविड की वजह से, उनको निमोनिया के फीचर्स कितनी सीवियर हैं, और वो किस स्टेज पे डॉक्टर के पास आते हैं, उनका डायग्नोज क्या बहुत अर्ली हो चुका है, तशखीस बीमारी की या बहुत ही लेट हुई है कि वो एंड पे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर राबे नेक्स्ट क्वेश्चन, what's the ratio of the patients in the month of Feb and now? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुशाहिदा आपने देखा कि मंथ ऑफ फेब से लेके, फेब में तो खैर स्टार्ट हुआ था, आप मार्च कर लें, मार्च में जो आपने पेशेंट्स देखे और जो हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे थे, उसमें रेशियो में और आज के दिन में रेशियो में कितना फर्क है? Actually, as you know, all people knows the first case of COVID-19 was diagnosed on 26th Feb. Exactly. In Karachi. Exactly. Yes. Exactly. Then after that case, a lot of patients were coming in March and April. Right. Right. And graph was increasing day by day tremendously. ठीक. Till 24th of May. ठीक. But after 24th May, cases were getting decreased. Zabardast, mashallah, very good, very good. Yes, and in month of July, we were very happy and we were very hopeful that this COVID will finish. ठीक है, इंशाल्लाह. But we had this update that after Eid al-Adha or after Dr. Rabe, inshallah, Dr. Rabe, that's the spirit of our nation. You guys are the front warriors. आप लोगों ने मेरे साथ प्रोग्राम काफी कर लिए हैं
और मेरी दुआ है रब काबा से कि अहद वफा में जब पुकारा जाए तो हमारा नाम भी आए. So we're going for the short break. Stay tuned, JNN. Take a break. मैं JNN चैनल के जमशेद नूर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह एक नया चैनल शुरू किया है. मेरी दुआ है कि वो इस काम में तरक्की करें और इस मुल्क में अच्छी अच्छी ख़बरें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएँ ताकि लोग इससे महजूज़ भी हो सकें और लोगों को अच्छी चैनल न्यूज़ और अच्छे प्रोग्राम देखने का मौका मिले. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद खान. चैनल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा. JNN चैनल, JNN इसे देखते रहिए, इसे वॉच कीजिए, इसको पसंद कीजिए, इसे लाइक कीजिए. ये वो चीज़ें जो आज तक आप नहीं देख पाए वो आप देखेंगे. बहुत अच्छा चैनल आने वाला है और आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले चैनल्स पे नहीं देखेंगी. बेस्ट विशेस JNN चैनल के लिए. गुड लक. थैंक यू. मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करेंगे. चले भाई. Welcome back, viewers. Viewers, we're going to discuss again with Dr. Rabia that how did she cope during the Eid. जी डॉक्टर राबिया, आपने किस तरह जी ईद पे how did you cope during the Eid? Yes, I was on duty from the Chand Raat till the अच्छा. first day of Eid. Wow. Till night. So ख़वातीन हज़रात ये देख लें कि ये वो फ्रंट वॉरियर्स हैं जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं ताकि हम लोग सेफ रहें. So hands off to you guys. जी डॉक्टर राबिया, अच्छा आगे चलें. हाँ जी, अच्छा आप ईद पे काम कर रही थी. हाँ जी आगे. जी बिल्कुल. First day of Eid तक तो I was in hospital. अच्छा ठीक. Then from the second day onwards, I enjoyed my Eid well. अच्छा. But I followed the SOPs, of course. Sure. I didn't go at crowded places. My even 2 to 3 friends invited me, but Sure. I didn't go there. I maintained social distancing. I used the masks Sure. during Eid too. And I visited my 2 relatives' families, but I used mask and. अच्छा, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि कुछ डॉक्टर साहिबान जिनसे मेरी बात हुई, यार आप लोगों में एक जैसे शक जैसी कैफियत होती है वो आप लोगों में ज्यादा नहीं हो गई भी कि यार हम खुद डॉक्टर्स हैं
और हम लोग फ्रंट वॉरियर्स हैं, अब हम किसी को मिलेंगे कुछ मिलेंगे, तो वो शक वाला अमल आप में ज्यादा तो नहीं आ गया? नहीं, मैं तो बेसिकली ये समझती हूँ कि हम में शक वाला अमल जो है वो काफी कम हो गया है एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल। अच्छा। बिकॉज हम तो बहुत ज्यादा कोविड पेशेंट से मिल चुके, सही। एक्सपोज हो चुके, सही। इसलिए हमें इतना डर वो थोड़ा बहुत खत्म हो गया। जैसे कि आम लोगों को डर होता है ना, वो कोविड पता नहीं क्या चीज है सही। और लोगों से मिलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो सही। मेरा ख्याल है एज ए डॉक्टर हमारा शक थोड़ा सा कम है। अच्छा, चलिए यार मैं इशू अपना बेसिकली बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट द अदर डॉक्टर्स। सही। अच्छा viewers, so on the second half of this program we're going to talk about the pregnant women and their cases. ख्वातीन हज़रात, जो खातून खाना इस वक्त मेरे प्रोग्राम देख रही हैं, अपने काम वरा छोड़ दें और इस हाफ को बहुत एहतियात से सुने, क्योंकि इसके अंदर बहुत मुफीद मुफ्त मशवरे हैं जो डॉक्टर राबिया पिछले 3 महीने से दे भी रही हैं, और आज कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो ख्वातीन ने मुझे भेजे हैं कि जी आप डॉक्टर राबिया से पूछें। डॉक्टर राबिया, once again thank you very much for this half. We're going to discuss about some important vital issues. थैंक यू। जी डॉक्टर राबिया, मुझे ये बताएं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, हाउ दे शुड अडॉप्ट, अच्छा जो जिस क्वेश्चन की रेटिंग में जिसे कहते हैं कि बहुत तवील किस्म की मुझे लिस्ट आती होती है कि जी ये क्वेश्चन हमने पूछना है about how they can adopt the healthy lifestyle during this pandemic, because पार्क्स बंद थे, ठीक है, 5 महीने बाद अब आज चीजें खोल रही हैं, लेकिन आपको पता है कि it's a humid weather now, monsoon just nearly finishing and we're going to go towards the humid weather. The humidity level is nearly about 60 to 80%. वो कह रही है जी कि अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह अपनाएं, प्रेग्नेंट वुमेन खासकर। वो कह रहे हैं जी कि न्यूली बर्थ अभी हुई नहीं है और हम वॉक वगैरह भी करनी है और एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, किस तरह कॉप करेंगे, ये हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट करें प्लीज? Again, I want to tell the people in Urdu. जी so बिल्कुल, they can understand. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सही है। आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है वो इजीली लग सकता है और ठीक। आपकी जो पावर होती है उस इन्फेक्शन से लड़ने की वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सही। तो और प्रेगनेंसी ऐसी चीज है जिसमें 2 जाने जो हैं वो अल्टीमेटली रिस्क पे होती हैं। तो इन खवातीन के लिए बड़ा जरूरी है कि ये ऑब्वियसली अपना जो अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल तो करें, मगर जैसे आपने बात की एक्सरसाइजेस ये लोग करना चाहते हैं और जैसे सियाहत के भी रास्ते खुल गए हैं, पार्क्स भी खुल गए हैं और हर इंसान जो है वो घर में बहुत फेड अप हो चुका है, सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो एक्सरसाइजेस ये अपने घर में जो हम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, कोई स्पेसिफिक योगाज हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो अपने घर में ये करें और जिम वगैरह का रुख इतना ज्यादा इख्तियार ना करें क्राउडी प्लेसेस पे। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की इम्यून सिस्टम की, मुझे कुछ ख्वातीन ने जो क्वेश्चन ये पूछा कि देखें जी ईद उल अज़हा आ रही है और हमारे खावंद और जो हमारे भाई वाला जो फैमिली वाले लोग हैं वो गोश्त बनाएंगे और गोश्त वाला खाएंगे। अच्छा, उनमें से कुछ ख्वातीन का सवाल मुझे ये आया कि यार कि आपको शायद यू आर द गायनेकोलॉजिस्ट और आपको पता होता है कि कुछ एक टाइम आ जाता है कि आप किसी चीज़ों से आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको जिनसे आपको अच्छी नहीं लग रही होती। तो मुझे जिन ख्वातीन ने क्वेश्चन भेजा उन्होंने कहा जी आपने स्पेशली ये पूछा है कि किन्नी को जो गोश्त की कुछ स्मेल है या उस गोश्त से उनको अपना मज़ा नहीं आ रहा खाने का और वो प्रेगनेंसी में भी है, वो कह रहे हैं कि हमने इम्यून सिस्टम बढ़ाना है और ये हम गोश्त खा नहीं सकते, फिर क्या करें हम? सलाद में कितनी, अगर सलाद भी वो खाती है, वो कह रही है कि हम सलाद भी खाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अगर सलाद से बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता अगर हम गोश्त ना खाएं तो? जी बिल्कुल, इम्यून सिस्टम आपका मेरा ख्याल है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से तो ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू अगर आप गोश्त की बात करें तो। सही। जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स लें, जो भी मौसमी फल आजकल बहुत ज्यादा आए हुए हैं मौसमी फल, अगर आप फ्रूट्स की मार्केट्स में जाएं ठीक है, तो वो आप सारे लें। फ्रेश वेजिटेबल्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें जो कि सैलेड के लिए यूज होती हैं। उसके अलावा इम्यून बूस्टिंग डाइट्स हम बताते हैं अपनी प्रेग्नेंट। अच्छा इम्यून, अच्छा हाँ ये मुझे बताएं जो इम्यून बूस्टिंग डाइट्स है, ये जो वो चीजें तो नहीं है जो आप पाउडर शेप में जो टिन्स में होते हैं और आप वो पानी में घोल के पीते हैं? अच्छा नो वो आम लोगों के लिए हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे मेल्स हैं वो जिम करते हैं तो उनके लिए वो इम्यून बूस्टिंग डाइट है, जैसे प्रोटीन पाउडर है तो वो लेते हैं। तो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं इनके लिए आयरन सप्लीमेंट है जो रोजाना ये लेंगी, कैल्शियम सप्लीमेंट है जो ये रोजाना लेंगी, ठीक है, जिंक सप्लीमेंट्स है जो ये लेंगी, और इम्यून बूस्टिंग डाइट प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ये है कि वो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें और प्लस
आप वो जहाँ जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, एक्सेप्ट कि क्राउडी प्लेसेस को वो अवॉइड करें, अपनी वॉक करें, घर में योगा करें, घर में एक्सरसाइजेस करें और जो उनका दिल करता है वो खाएं। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो, अगर वो डायबिटिक हैं तो फिर वो मीठे को ऑब्वियसली अवॉइड करें। अगर उनको कोई जोड़ों की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है तो वो मीट को भी अवॉइड करें। राइट। मगर किसी भी किस्म की बीमारी में आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीजें आप ले सकती हैं। जबरदस्त। डॉक्टर राबिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक न्यूली बॉर्न बेबी इन द एरा ऑफ कोविड बॉर्न हुआ, न्यूली बॉर्न बेबीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन दे बी प्रोटेक्टेड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे जब ये सवाल मैंने आपसे पूछना था तो मैं खुद सोच पड़ गया था कि यार कि अगर एक बेबी के बर्थ पसमानदा इलाके में घर में हुई है, जो हमारा एक सिस्टम है आया का, जिसको हम इंग्लिश में मिडवाइफ्स भी कहते हैं, पसमानदा इलाके में जिनका हुआ, क्या वो लोग प्रोटेक्टेड हैं? और जिन लोगों की अगर बर्थ हॉस्पिटल्स में हो रही है, जो शहरी लोग हैं, आर दे दे कैन बी प्रोटेक्टेड? एंड इफ दे कैन प्रोटेक्टेड, हाउ? या आप देखें, आपके क्वेश्चन में देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एक अच्छा। तो आपने मुझे ये कह दिया कि एक पसमानदा इलाके में एक पेशेंट जो बिल्कुल। उसने एक उसकी डिलीवरी हो गई। बिल्कुल। अब जब उसकी पसमानदा इलाके में डिलीवरी हो गई तो उसका बेबी की प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेबी की एज जो है वो बहुत लेस होती है। वो बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी अपने आप खुद प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। सही। फिर अगेन माँ की प्रोटेक्शन आ जाती है जो वो बेबी को करेगी। ठीक। अब माँ को सबसे पहले तो कोविड का टेस्ट जाके करवाना चाहिए। ठीक। ठीक है। उसके बाद ये करना चाहिए उसको कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान है और अगर वो कोविड पॉजिटिव आ जाती है तो वो अपना कफिंग, स्नीजिंग, छींकती है जब वो, या वो खांसी करती है, ठीक तो है। अपने बेबी को अवॉइड करे और वो मास्क का इस्तेमाल करे। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग होती रहे? यस, ब्रेस्ट अच्छा, फीडिंग ठीक, होती रहे, ठीक। बिकॉज कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बिल्कुल सेफ है बेबीज के। अच्छा, जबरदस्त। इस तरह की कोई एविडेंस। तो ये देख लें, ये भी खुदा की कुदरत है कि जो अल्लाह ताला ने जो चीज एक आपके लिए नेमत पैदा की हुई है, वो उस बेबी के लिए भी कोई खतरा नहीं है उसके अंदर। जबरदस्त। जी, आगे प्लीज। यस, एग्जैक्टली। जी। और उसके बाद जो पेशेंट्स हैं वो जैसे हॉस्पिटल में वो डिलीवर होती हैं, तो उनके लिए भी सेम प्रिकॉशनरी मेजर तो यही है कि वो वाइल हैंडलिंग देयर बेबीज वो अपना मास्क वगैरह लगाएं, सही। और बेबीज को हाइजेनिकली कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। अच्छी, जैसे वो बेबी को टच करते हैं तो अपने प्रॉपर अपने हैंड्स को वॉश करें, सैनिटाइजर से साफ करें। अगर सही। वो कोविड पेशेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, तो वो अपना दोबारा टेस्ट करवाएंगी ठीक। कि वो जब तक कोविड नेगेटिव नहीं होती वो प्रॉपर अपना N95 मास्क यूज करेंगी। सही। बिकॉज अगेन जो न्यू बॉर्न बेबीज की बहुत ज्यादा लो इम्यूनिटी होती है, अच्छा, इसलिए ठीक। इन अच्छा, बहुत ज्यादा अब यही से दोबारा एक और सवाल जुड़ जाएगा। जो न्यूली बॉर्न बेबीज, इनमें इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, तो वो सिर्फ, आपको पता है कि न्यूली बॉर्न बेबीज ओनली राय ऑन द मिल्क, तो क्या वो चीज उन्हीं के लिए काफी है या उसके लिए, क्योंकि 6 महीने से पहले तो कुछ बच्चा कुछ खा नहीं सकता, लिक्विड चीज है जो जाएगी उसके दिमाग, उसके पेट में? एक्चुअली कोविड डजंट अकर इन द न्यू बॉर्न बेबीज। अच्छा। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज, हाँ, ये तो खैर मुझे आपने बताया भी था कि जब हमने प्रोग्राम, जब मेरा आपसे पहला प्रोग्राम हुआ तो जब आपने चीज बताई थी, तो दैट वाज अमेजिंग थिंग फॉर द व्यूअर्स ने मुझे बड़ा बताया कि यार जबरदस्त चीज। जी, प्लीज आगे चलें। जी। then COVID doesn't occur in the newborn babies. Sorry. So the females can only protect their babies during breastfeeding by these SOPs, like the use of masks, Sorry. like the proper sanitization of the hands, ठीक। and they can improve the hygienic conditions with their babies. And if they are COVID positive, then they go for the test after 21 days or after 14 days सही। till the 2 to 3 consecutive PCR negative should ठीक। done. So सही। these are only the precautionary measures that the pregnant woman can carry. अच्छा, मुझे ये एक और बात कि अगर जैसे न्यू बॉर्न बेबीज हैं, दे आर इन वन रूम, तो दूसरे जो हमारे यहाँ रवाज है ना कि एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो सब लोग देखने के लिए उसको आ रहे हैं, तो ये चीज मैं जरूर कहूंगी खवातीन को कि इस चीज को आप अवॉइड करें। सब आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके गेस्ट हैं उनका मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए उस बेबी के साथ, बिकॉज देखें एक चीज का रिस्क तो है ना, तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि कम लोग विजिट करें उस रूम को जिसमें न्यू बॉर्न बेबी को रखा हुआ है, और स्पेशली मदर को भी।
ठीक। सो द व्यूअर्स, जो खुशी आपके घर में आएगी या आ चुकी है, आपका जज्बा बहुत होगा उसके साथ खेलने का, उसको देखने का, लेकिन ये उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि उसको विजिट कम से कम किया जाए। जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप उनके साथ खेल भी सकते हैं, और जाहिर सी बात है उसने इस मुल्क का मामार बनना है, तो आप लोगों की तरबियत से ही वो होगा, लेकिन एहतियात करनी है कि आपने उनको ज्यादा विजिट नहीं करना। अच्छा डॉक्टर राबिया, अगेन मैं अब आपके मुशाहिदे की तरफ चलूंगा कि फरवरी में जो आपके पेशेंट्स थे प्रेग्नेंट वुमेन्स के, वो कितने थे और आज ये रेशो बढ़ गई है या कम है? देखिए, अगर फेब से देखा जाए तो इन मार्च, नॉट इन फेब, बिकॉज इन फेब ओनली 2 cases were reported. ठीक, बिल्कुल In March, April and May, ठीक। cases were increasing like anything. Cases बहुत ज्यादा थे। ये कब? Like हमारे मैडम पास कब? lakhs में cases थे। मैं दोबारा March, April और May. In March, April and May. प्रेग्नेंट केसेस? Yes. अच्छा ठीक प्रेग्नेंट केसेस हमारे पास ज्यादा थे। ठीक। लाइक अभी मैं एग्जैक्ट फिगर्स को तो हमने अभी तक रूल आउट नहीं किया पूरी कंट्री की प्रेगनेंसी की फिगर को, ठीक है। मगर आप कह सकते हैं हाँ, ये काम तो हुकूमत का है। मैं अगला जो क्वेश्चन मेरा आपसे होगा जब मैं इसको फिनिश करूंगा, आप इस प्रोग्राम इस क्वेश्चन के बाद मैं ब्रेक में जाऊंगा और फिर मैं क्वेश्चन हुकूमत के लेवल से पूछूंगा कि चीजें उसमें क्या चीजें हो रही हैं। जी आगे प्लीज कैरी ऑन। Yes, thousands of cases were present in the April and the May. ठीक। But in July, I personally feel that the cases decreased. Cases were going to the decline. ठीक। But immediately after Eid al-Adha, new cases are reporting every day. Every day, the new 50 cases are coming from the gynae patients, ठीक। from the pregnant patients. हाँ। I don't know, people have Yes. dropped their usage of the SOPs, or I don't know why. But yes, cases are. दुआ तो यही है कि जिसने इस दुनिया में आना है, जी जिसने इस दुनिया में आना है वो सेहतमंद हो और इस मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा अदा करे। So the viewers, we're going for the short break. When we come back, we're going to discuss more with Dr. Rabia. So stay tuned. JNN. JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। मैं जो नया चैनल लॉन्च हुआ है JNN, उसको अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। बड़ी नई टीम है, यंग टीम है, और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह मेहनत से जैसे पहले काम करते रहें, अभी भी काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं, और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। Welcome back, viewers. Viewers, we're going to discuss with Dr. Rabia again. But before I go to the question, ये चीज़ मैं जो सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि आज ये चीज़ डॉक्टर राबिया से भी डिस्कस कर लूँ कि गवर्नमेंट शुड अवेयर सिटीजन्स अबाउट द प्रेगनेंसीज केसेस। देखिए, कोरोना आया, ठीक है, हम हालात जंग में हम इसको डील कर रहे हैं और हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि चीज़ को कम से कम, और अल्हम्दुलिल्लाह कम होती जा रही है, लेकिन पोलियो भी यहीं पर था, डेंगू भी यहीं पर था, जो टाइफाइड मलेरिया ये तो चलते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेगनेंसी के हवाले से
कुछ चीजें इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो मैं डॉक्टर राबे से पूछूंगा, जी डॉक्टर राबे, आपने मेरा सवाल तो सुन लिया होगा, मुझे जरा इसके बारे में बताएं। देखें, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कुछ लीफलेट्स लगे हुए हों, कुछ टीवी के ऊपर कैंपेन हो, आपकी चीजें को चल रही हो, ताकि आपको पता चले कि जी वाकई के जो खतून है जिसने एक नई जिंदगी जो आ रही है उसको पालना है, और उस फिर उसने नौजवान बनना है और इस मुल्क की तामीर में उसने ऐसा लेना है। तो इसके हवाले से कोई अवेयरनेस तो नहीं हो रही, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? Yes, you are right. Actually, there is no reason कि मैं कहूँ कि गवर्नमेंट को हाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड अवेयर देयर सिटीजंस अबाउट द प्रेगनेंसी केसेस। बिल्कुल। इससे ये होगा कि पीपल विल बी मोर अवेयर, पीपल विल फॉलो द SOPs। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में चीजें आ रही है, छोटी सी चीज आ रही है। देखिए कि अगर आपने छोटे पैमाने से काम शुरू करना, तो जिन जिन हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर ओपीडीज पहले बंद थी, अब तो खैर ओपीडीज खुल चुकी होंगी यार, वहां पर जो आपके पैनाफ्लैक्सिस हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन, ताकि जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहा है या क्लिनिक्स में दाखिल हो रहा है उसको कुछ मालूमात पता चलना शुरू हो जाए। लेकिन जो बंदे अनपढ़ हैं उनके लिए कुछ तस्वीर या कुछ ऐसी चीजें हो ताकि वो लोग इस चीज को इस बहुत जो मालूमात इनको मुयस्सर हो सकती है तस्वीर की शक्ल में या तहरीर की शक्ल में। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस चीज के और भी वीडियोस हो सकते हैं, इस पे लोग बात करें, लेकिन कमी बहुत नजर आ रही है कि इस चीज के बारे में बात नहीं हो रही। जी एक्चुअली गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, leaflets के थ्रू या टीवी कैंपेन्स के थ्रू, एंड इवन व्हेन द पीपल कम्स टू अस, व्हेन द प्रेग्नेंट पेशेंट्स कम्स टू अस। मैडम आप तो कह रही है, आप कह रही है, मैं आपको पोजीशन समझ सकता हूँ, लेकिन देखा ये गया है कि इतना चीज नहीं हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके बारे में बात नहीं हो रही, प्लस जो चैनल्स हैं, जो हमारा मीडिया हाउसेज हैं, इन पर भी बात नहीं हो रही। बेसिकली एफर्ट तो अगर ये कर भी रहे हैं, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। मेरा सवाल ये कि नजर नहीं आ रही है। जी प्लीज आगे कैरी ऑन। हाँ, मे बी यू कैन बी राइट, बट ये है कि मैं बेसिकली इसमें, अब देखिए मेरी एडवाइस बन जाती है लोगों को देना। अब अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है या एक चीज की कमी है, तो हम यही कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी, वो हमारे पास देहाती एरिया से आ जाती है, या अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ और वो मेरी बात को नहीं समझती मगर वो टीवी चैनल ऑन करके बैठी है, ठीक हो गया, तो अगर वो मेरे पास आती है तो मैं यही कर सकती हूँ कि उसको मैं पंजाबी लैंग्वेज में बता सकती हूँ। अगर एक पेशेंट है वो इंग्लिश नहीं समझ सकती तो मैं उसको उर्दू लैंग्वेज में बता सकती हूँ। और हमारे कंट्री में बहुत से फॉरेनर पेशेंट्स भी हैं जो कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश चैनल्स हैं हमारे बहुत कम लोकल यहाँ पे, और वो बैठ के इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चैनल जो है वो इंग्लिश में हो और लोग हमें बताएं। तो ये एक जो एक हर्डल है ना, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होना चाहिए कि आपके पास तस्वीर लगी हो जो लोग समझ नहीं सकते, तस्वीर हो। बिल्कुल, देखिए जी उनमें कुछ ऐसे खौतीन में होंगी जो गूंगी बहरी होंगी, ठीक है जी, बिल्कुल, जिनकी बसारत नहीं होगी, जिनकी बसीरत नहीं होगी, तो जिनकी बसारत नहीं है वो सुन तो कम से कम सकते हैं, तो वो उनको बता सकते हैं, और जिनकी जो सुन नहीं सकते, गूंगे बहरे हैं, वो इशारों से बात हो सकती है। तो ये चीज मैं देखना चाह रहा था कि ये चीज की थोड़ी कमी है। जी आगे चलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, कोई गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो जो गवर्नमेंट के सेटअप में हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों ने तो तस्वीर भी लगाई हुई हैं, और मैंने देखा है बहुत से जो अच्छे लेवल के डॉक्टर आपने बड़ी अच्छी बात अभी देखे, आपने प्रोग्राम से करते करते चीज नहीं निकल आई, और व्यूअर्स इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मैं जो हजरात ख्वातीन हजरात गूंगे बहरे हैं, बसारत और बसीरत जिनके पास नहीं है, उनके हवाले से भी प्रोग्राम करूंगा ताकि अवाम नास को ही पता चल सके कि क्या इन लोगों की क्या जरूरियात है। जी आगे चलते हैं। योर सजेशन एंड एडवाइस डॉक्टर राबिया एज अ डॉक्टर पहले दें और एज अ फीमेल दें। राइट, एज अ डॉक्टर माय एडवाइस टू गवर्नमेंट, बल्कि माय रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट शुड टेक द गुड स्टेप्स to control this pandemic situation, COVID-19, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये कुछ कमियां हैं, तो गवर्नमेंट should take the good steps to fulfill their deficiencies, to compensate these deficiencies. And government is already trying to take the good steps, but obviously in one country deficiencies occur in the different
areas. ठीक. So we should fulfill these things. That's right. And government should provide the good ventilators and the good sanitizers to our doctors in different hospitals of Federal and Punjab. And for और उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो कीमत है सैनिटाइजर्स की, वो भी कम होनी चाहिए जी, जो अच्छे वाले. Yes. For the ordinary people at stores, the cost should be very less. So every person can afford to buy this sanitizer. And government should take very good steps at the social media, electronic media, to provide the leaflets to their homes or to the hospitals, in the OPDs, and should carry out the steps to educate the people about this disease and its complications also. So different age groups. So the viewers, look at the power of this and motivation of these doctors. They are the front warriors. They are out in the streets, in the clinics, in the hospitals to look after ourselves. Dr. Rabia, I'm concluding my program. So anything you want to say to the viewers in the end? कुछ कहना चाहेंगी? Yes, I would. Yes, obviously. Around the globe, I would like to say that the JNN channel is doing very well. Oh, thank you very much. Thank you very much. Because there is a good initiation from the JNN regarding the English programs about the coronavirus infection, and JNN is accommodating the people in a very good way. And you people are doing very hard work because it's a teamwork. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. Yes, and these programs have very good ranking because many foreigners just few days before they told me that this channel is doing very well. Oh, brilliant! Thank you very much. Because this channel is a newborn channel, only 3 months of age. Exactly. So in these 3 months, they are accommodating the people regarding the lethal pandemic condition of COVID-19, and I also appreciated this channel because the team is very hard worker. Oh, brilliant. Anchors are very good. Oh, thank you very much. You are just dealing with these programs very well, and you people are fulfilling their duties in a very professional manner. And I really enjoyed all other programs of your channel, and I'm wishing good luck and keep it up. Oh, brilliant. And of course, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Rabia, for your precious time. ख्वातीन हज़रात, मेरा कहने का मकसद यही था कि ये लोग फ्रंट वॉरियर्स थे, और कोशिश ये होती है कि मेरे इस प्रोग्राम में इंग्लिश और उर्दू का इम्तजाज हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सके. मेरी यही ख्वाहिश है कि जब अहद वफाक में पुकारा जाए तो हमारा नाम भी आए. So the viewers, as the Independence Day is coming, I'm getting very excited. So I will see you on the Independence Day, inshallah. Stay strong, Pakistan. Long live Pakistan. Rish Shams signing off. JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं. पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है. हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्को